Good afternoon, everyone. So yesterday we stopped, we were about to start 1-bit memory, but we could not start. So today we will start with 1-bit memory. कल एक rough revision लेंगे, एक जल्दी से revision लेंगे. What are we doing? We are doing flip-flops, flip-flop, register and counter, right? तो क्या है ये flip-flop, register, counter? Counter तो हाँ मैंने कहीं सुना है. Count down करते हैं हम 10, 9, 8, 7 करते हैं वो count. That means in digital electronics क्या है counter? It will count digital pulses. Okay, it will count digital pulses. उसको counter बोलते हैं. Register क्या होता है? It can store larger memory. Okay, and 1-bit memory को store करने वाली चीज को क्या हमेशा हम बोलते रहेंगे क्या? 1-bit memory, 1-bit memory, 1-bit memory. Correct, सम्यक. तो हमेशा हम 1-bit memory ऐसे नहीं बोलेंगे. उसका एक word होना चाहिए. उसका नाम है flip flop. So the 1-bit memory is saved in it is known as flip flop. Okay, and many, if we have more than 2-bit to store, तब उसको बोलेंगे register. जैसे सेम चीज अगर मुझे पेपर में लिखना है, ठीक है, आज मैंने पेपर में नोट्स लिख लिए, रोज पेपर में लिखती जाऊंगी क्या? नहीं, है ना, पेज हो जाएगा, तब वो सब इकट्ठा करके क्या बनेगा? रजिस्टर बनेगा, है ना, वैसे सेम चीज. ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. आज हम स्टार्ट करेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन उसके पहले देयर इज द डायग्राम ऑफ 1-bit मेमोरी. मैं जब ये बोल रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग 1-bit मेमोरी, हाउ डज इट लुक लाइक, है ना, कहाँ सेव होता है, कहाँ स्टोर होता है, दैट वी विल सी नाउ. फाइन, लेती हूँ मैं. For this chapter, Fadke publication is better. Okay, is better, and I would, it is given very straightforwardly and very nicely. It is given in Fadke publication. Okay, if you have both Kinnari and Fadke, you can, it's up to you, but introduction वगैरह अच्छा दिया है Fadke publication में. And if you read एक बार after the explanation I give, just go through it once and you will understand it. Okay. This is the circuit diagram of a 1-bit memory. Okay, what can you see here? Which gate is this? कौन सा gate है ये? Which gate is this? This is a NAND gate. NAND invert. Actually, NAND and NOR, why we are using? Because it is a universal gate. है ना? It can act as basic gates also. It can act as normal NAND gates also. So NAND, you will see majority circuit diagrams in this particular chapter we focus on NAND and NOR because they are universal gates, है ना. तो वो कैसे भी you can bring those gates into any favorable conditions. Fine. Now here what you can see is two NAND gates are connected, interconnected like this. This is coupling किया है, इसका output इसको दिया है, इसका output इसको दिया है, ठीक है. Now this, इसमें एक memory, how is this stored? It consists of two NAND gates, G1 and G2. If you see, these are used as inverters. Why? Because does it have normal NAND gate को कितने inputs होते हैं? It has 2 inputs and 1 output, right? But here how many inputs can you see? Only 1 input. ऐसा कौन सा gate है, basic gate, जिसको सिर्फ 1 input और 1 output होता है? कौन सा basic not gate? Exactly, not gate, है ना. Not gate को 1 input 1 output, 0 दिया तो output में क्या आएगा? 1 input में दिया तो output में क्या आएगा? 0, है ना. 0. Inverter means not gate means inversion. Okay, same thing over here. Here NAND gate is used as inverters because it has only 1 input. Okay, now the output of G1 is connected to the input, that is A2, and output of G2 is connected to the input of G1 as A1. ठीक है, इसका output इसको connect है, इसका output इसको connect है. Okay, now when the power is switched on, okay, when the power is switched on, this Q, ये Q output है. Q बार मत देखो, it is इसका complementary है Q, ठीक है. main output कौन सा है? Q. ये Q can be digital electronics है, binary है, it can store 1 bit. bit कौन से हो सकते हैं? कौन से bit? 0 या 1. तो अपने को पता नहीं, अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ये when you switch on the power, it can be 0 or it can be 1, कोई भी possibility हो सकता है. Okay, but अभी अपनी explanation के लिए we will consider one condition. Okay, we will consider that the output is 0 first. ठीक है, when output is 0,
ये जो 0 है ये कहाँ पे कनेक्टेड है? A2 पे कनेक्टेड है. Yes. So what will A2 become? बताओ. A2 will become 0. What did I say? This was acting as an inverter. मतलब can you tell me क्या होगा इधर? आउटपुट में क्या आएगा? इनपुट पे 0 है, इन्वर्टर है, तो आउटपुट में क्या आएगा? This will be equal to 1. Absolutely correct. My chair is making a lot of noise today. Output will be 1 because this is acting as an inverter. Correct? So that means what can you see? मैं अगर यहाँ पे Q bar नहीं लिखती मैं Q bar, तो क्या नजर आ रहा है? ये दो आउटपुट्स के का क्या रिलेशन बन रहा है? मैंने Q bar निकाल दिया. ठीक है, 0 and 1 मतलब दोनों उल्टे हैं. Are they complementary? The word used is they are complementary to each other. They are ulta. Okay, fine. अब हम दूसरा केस लेते हैं. Suppose this output was 1. मतलब क्या हुआ? जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक इधर Q में 0 ही स्टोर होगा और Q bar में 1 ही स्टोर होगा. ठीक है, that means my main output is holding how many bits? It is holding 0. ठीक है. Now let us consider that it is 1. What if it is 1? This will go to the input. Yes, what will it become? What will it become? It will become 1. This is acting as an inverter. Output में क्या आएगा? Output में आएगा 0. तो automatically ये क्या हो रहा है? क्या relation है? मतलब ये हमेशा उल्टा ही रहेगा, हमेशा. भले 0 हो या 1 हो इनपुट पे, हमेशा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इसीलिए ये आउटपुट को हमने नाम दिया है Q bar. Okay. So what are the what you can say conclusions? Q and Q bar are all. Just give me a minute. So what are the conclusions? Q and Q bar are always complementary and these are two stable states. इसलिए इसको बोलते हैं, मैंने कल नाम बताया था, two stable states हैं, 0 या 1. इसलिए इसका क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? Bistable multivibrator. Bistable क्यों? क्योंकि दो स्टेट्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के. समझ में आया? 0 या फिर 1. Is it clear? 1 bit memory cell. I think, I'm not sure. You can check the book. It was hardly asked, but you should know. Fine. Now, जब तक मैं उसको टच नहीं करूंगी, जब तक इसका इनपुट चेंज नहीं होगा, जब तक क्लॉक सिग्नल या फिर मैं कुछ भी इसको करूंगी नहीं, तब तक ये Q1 ही रहेगा, Q bar 0 रहेगा. It will remain in this particular state. This property is known as memory. इसलिए इसको memory बोलते हैं. समझ में आया? Therefore it can store 1 bit. ये तो बाद में आया ना. Q bar क्यों आया? क्योंकि Q है. Q होता है इसलिए Q bar. ये दो इंटरकनेक्टेड है. मेन हेड कौन है? राजा तो ये है. इसके बाद ये आया ना. Q नहीं होता तो Q bar होता क्या? नहीं. तो you don't think of this. You think of only this. Okay, so it is storing what? क्या स्टोर कर रहा है वो? 1 स्टोर कर रहा है. Q bar तो मैंने मंगाया इसलिए आ रहा है वो. समझ में आया? That is why this is known as a 1 bit memory. Okay, now this I'm repeating again and again. It can come in multiple choice questions. Flip flop का दूसरा नाम क्या है? क्या है flip flop का दूसरा नाम? Bistable multivibrator. ठीक है, ये कहीं मेंशन कर दो because it has 2 states. Okay, it can remain in that state indefinitely. Fine. Now we will see RS flip flop. Okay, ये ऐसे ही flip flop हम यूज करेंगे, ऐसे ही 1 bit memory यूज करेंगे और हम flip flop बनाएंगे. अलग अलग नाम है flip flop की. क्यों? Why is there different names according to its functions? Okay, RS flip flop मतलब reset set reset है इसमें, वो देखेंगे. We'll see the function. Okay, this is an RS flip flop. Tell me which gate is used. कौन सा gate है ये? कौन सा gate है? NAND gate. NAND gate है ना. Please gates का concept clear करो. Fine. This is NAND gate. So this is RS flip flop using NAND gate. Why am I using NAND gate? और कोई gate क्यों नहीं use किया? मैं NOR भी use कर सकती हूँ, वो भी है आपके syllabus में. NOR भी use कर सकते हैं. NOR और NAND ही क्यों use किया मैंने?
Why not other gates? Universal Because gates. absolutely right, because NAND and NOR are universal gates. You can bring out any you can mold it into any basic gate also, derived gates also, वो कैसे भी काम कर लेगा, ठीक है. Now see what is happening in RS flip flop. Now NAND गेट का आप सबसे पहले ट्रुथ टेबल जहां पे भी है वहां पे ड्रॉ करोगे, ठीक है. 2 इनपुट है, मतलब यहाँ पे इनपुट है R और S ले रही हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो R और S मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा. 2 इनपुट है, हम ट्रुथ टेबल लिखेंगे. इनपुट 0 0 होता है तो आउटपुट क्या आएगा 1. NAND का पता है ना आपको क्या है इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन फॉर NAND? NAND मींस नॉट ऑफ एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, A इंटू बी. NAND मतलब नॉट ऑफ एंड, मतलब उसमें इन्वर्जन आ जाता है, A इंटू बी बार. तो A इंटू बी, 0 इंटू 0 0, उसका बार 1, 0 1 0 1 मल्टीप्लाई करो 0, उसका बार 1 1 0 मल्टीप्लाई करो उसका बार 1 1 1 मल्टीप्लाई करो 1, उसका बार 0. ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, इस बेचारे को कहीं पे भी 0 दिखा तो आउटपुट 1 देगा. समझ में आया? आपको मेजॉरिटी क्या देता है वो देखना है. मेजॉरिटी क्या मिल रहा है यहाँ पे 1, एंड कब मिल रहा है? इफ एनी ऑफ द इनपुट if any of the input is 0, what will you get? You will get output 1. You have to remember this, okay? Any of the input is 0, you will get output 1. Now when this is asked in the exam, explain or draw and explain RS flip-flop using NAND gates, what will you do first? You will draw the diagram, fine, and then you will explain it. That output, it has got 2 inputs. Output Q is connected to the input of the second NAND gate, okay, and output of the second NAND gate is connected to the input of the first NAND gate. समझा क्या? फाइन. अब ये है फ्लिप फ्लॉप. फाइन. नाउ this then you will write this also कि आउटपुट कब 1 मिलता है? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0. कोई भी इनपुट 0 रहे, ये NAND गेट में या ये NAND गेट में, दोनों इनपुट में से कहीं पे भी 0 आया तो आउटपुट 1 होता है. ठीक है, ट्राई करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेक the output. Again, I have got 2 inputs to the flip flop, so I will, how many combinations will be there for 2 input के लिए कितने combinations होते हैं हमेशा? कितने होते हैं? 2 raised to 2, that means 4. ठीक है, तो ये है इसका इनपुट. R और S फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0, R 0 S 0. ठीक है, मैं Q बार को इंपॉर्टेंस दूंगी क्या? नहीं, वो ऑटो बाद में देखेंगे. हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? Q को इंपॉर्टेंस दे. ठीक है, ये NAND के आउटपुट में मैंने अभी क्या बोला, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा? दूसरा देखना ही नहीं, क्योंकि ये जो पावर ऑन स्टेज में है तो ये सब नहीं देखना, फिर कंफ्यूजन होगा. यू जस्ट सी दिस फर्स्ट कंडीशन. दूसरा इनपुट मुझे क्योंकि पता ही नहीं ना Q बार में क्या है, मुझे नहीं पता लास्ट स्टेट क्या था, इसके पहले का कंडीशन क्या था, मुझे नहीं पता. सो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस ओनली. कहीं से तो स्टार्ट होना है ना. इट्स जस्ट लाइक आस्किंग चिकन पहले आया या अंडा पहले आया. You have to start from somewhere, then you can say, isn't it? Same thing. You cannot start with Q bar. I don't know what the value of Q bar is. तो इसलिए छोड़ दो उसको. तो Q पे concentrate करेंगे. ठीक है. So when R is 0, मैंने अभी क्या बोला, कोई भी इनपुट 0 होगा, कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा? दूसरे का मुझे पता नहीं, ये इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा? फटाफट बताने का मुझे, क्या होगा? ये दोनों इनपुट में से एक इनपुट 0 है, सो व्हाट विल द आउटपुट बी? द आउटपुट ऑटोमेटिकली विल बिकम 1 अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ NAND. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बोथ आउट ऑफ द 2 इनपुट्स द कंडीशन इज 0 0. यहाँ पे भी S is equal to 0 है. That means Q bar will also become 1 according to the definition of NAND gate. ये ट्रू है क्या? ये बराबर कंडीशन है क्या कि Q और Q बार दोनों सेम है? ऐसा है क्या कंडीशन फ्लिप फ्लॉप में?
नो, इट्स No, no. रॉन्ग, वो रॉन्ग है। Q और Q bar हमेशा, what is the conclusion? Q and Q bar are always complementary to each other. This state cannot happen. This is not possible. Okay, this is not possible. Hence, this condition is known as forbidden condition or forbidden state. What is it known as? Forbidden state. So इधर मैं डैश दूंगी, forbidden state है, वो नहीं हो सकता। दोनों जीरो करेंगे तो आउटपुट 1 1 आता है, that's not possible. Okay, that does not, because both the outputs are always complementary, तो वो नहीं हो सकता, तो मैंने निकाल दिया। It's known as forbidden state. Now let us see the second condition. R is equal to 0, S is equal to 1. R is equal to 0, S is equal to 1. तो क्या बोला, जहां पे एक इनपुट 0 होगा आउटपुट 1 होगा। ओके, दिस इज 1, ठीक है। एंड दिस आई डोंट, S is equal to 1, so you need not worry about that. जहां पे भी 0 है वहां का आउटपुट 1 होगा। So I will write 1 for Q. Okay, next let us change next condition। कौन सा है थर्ड कंडीशन? It is 1 and 0. R is equal to 1, S is equal to 0. 1 को छोड़ देंगे, मैंने क्या बोला, जहां पे भी 0 है आउटपुट would be 1. तो over here it would be 1. Q bar will be 1. What will Q be? It will be 0. I will write 0. Okay. Now when the condition is 1 1, when the condition is 1 1, the flip flop remains latched. It is known as last state. ये क्या होता है? लास्ट स्टेट, मतलब जो पहले आउटपुट था वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इसमें। फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड RS फ्लिप फ्लॉप? सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, मेजॉरिटी कौन सा आउटपुट था नैंड में? 1 था। वो कब आया? जब एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, बस, ठीक है, क्लियर है। एंड यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट यू आर राइटिंग। If R is equal to 0, S is equal to 0, Q is in forbidden state. If R is equal to 0, S is equal to 1, Q is equal to 1. यही लिखना है आपको बस. There is nothing else. No much theory you have to write. समझ में आया? Clear है? Now we will go. अभी सिर्फ NAND ही क्यों यूज किया मैंने? I can use NOR gate also. Let us see if we can use NOR gate. चलो NOR gate यूज कर. NOR gate कैसे होता है? NOR means और का नॉट, है ना? सो इट इज और गेट विथ अ बबल, करेक्ट? और गेट विथ अ बबल. चलो, लेट्स सी इफ वी कैन गेट इट. वी विल चेंज द ट्रुथ टेबल. ऑब्वियसली इट इज नॉर गेट, है ना? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट? हु विल टेल? x plus b bar. और का नॉट है, और क्या है? और मतलब एडिशन होता है, और उसको मैंने नॉट लगाया तो उसका बार, ठीक है? 0 0 0 प्लस 0 0, उसका बार 1. 0 1 0 प्लस 1 1, उसका बार 0. 1 0 1 प्लस 0 1, उसका बार 0. 1 1 1, उसका बार 0. मेजॉरिटी क्या आ रहा है यहाँ पे? 0. ओके, मेजॉरिटी क्या आ रहा है? 0. तो हम उसके बारे में बात करते हैं. आउटपुट विल बी 0 इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई और 1. समझ में आया नॉर की स्पेशलिटी क्या है? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आया ना, कुछ करना नहीं है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कहां से क्या कनेक्टेड है, और नॉर का ट्रुथ टेबल साइड में बना दो, बस लिखना है. फिर ऑटोमेटिकली नॉर के ट्रुथ टेबल से पूरा टेबल बन जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन बन जाता है. इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग. समझ में आया है क्लियरली? सो नॉर गेट में क्या है ज्यादा? मेजॉरिटी zeros. अब वो कब आ रहा है? when any one of the input is 1, you get logic 0. तो अपने को ट्रेस क्या करना है? अपने को ट्रेस करना है वंस को. कहां पे भी अगर 1 आया तो मतलब आउटपुट क्या होगा? 0 होगा. ठीक है? कैन वी स्टार्ट now? When R is equal to 0, S is equal to 0, are we tracing for 0? No, we are hunting for what?
1. तो दिस विल रिमेन इन द लास्ट स्टेट. ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट स्टेट में रहेगा. I will just write it over here. It will remain in the last state. ठीक है, क्योंकि 0 0 से हम कुछ बता नहीं सकते, वो लास्ट स्टेट में ही रहेगा. ठीक है, now let us go to the next one. When 0 1, when r is equal to 0 and s is equal to 1. ठीक है, now in this case r is equal to 0, s is equal to 1. ठीक है, मैंने क्या बोला था, कोई भी इनपुट 1 है, ये ठीक से लिखती हूं मैं, s is equal to 1. मैंने क्या बोला था, कोई भी इनपुट अगर 1 है तो उसका आउटपुट क्या बन जाएगा, क्या होगा उसका आउटपुट. अच्छा, पहले इसमें I did not say which is the set state and reset state. I will tell you that. Okay, what will be when it is anywhere if there is 1, what will the output be? If 0. r is equal to 0, 1 is s is equal to 1, what will the output be? It will be 0. And what will, इस 0 का उल्टा क्या होगा q में, फटाफट बताओ. कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0. तो मेरा यहाँ पे 1 था इसलिए आउटपुट आया 0. 0 का उल्टा चाहिए ना, इधर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट 1, है ना. सो आई विल राइट 1, q is 1. ना उल्टा चेंज करो, क्या है कंडीशन, s is equal to 0, r is equal to 1. कहाँ पे क्या चेंज होगा बताओ फटाफट. मैंने क्या बोला, जहां पे q भी is equal 1 to 0, है, q dash 1. हाँ, कहा जहां पे भी 1 है, that output is going to be 0. Okay, fine, this is 0. What will q bar be? 1. We are not targeting q bar, we are targeting only q. क्या आया मेरा आउटपुट, 0. समझ में आया. Okay, now listen to the last condition. It is 1 1. वो भी 1 है, ये भी 1 है. नॉर का डेफिनेशन क्या बोलता है, जहां पे भी 1 है, इवन इफ 1 कहीं पे भी 1 आया, आउटपुट क्या होता है, 0, है ना. तो मतलब यहाँ दोनों 1 है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. ऐसे होता है क्या, q and q bar दोनों सेम? No, this can never happen. This is contradictory. Hence, this state is known as forbidden state. क्या बोलते हैं इसको, forbidden state. समझ में आया, क्लियर है. q और q bar कभी भी सेम नहीं हो सकते, लेकिन नॉर की डेफिनेशन में बता रहा है वो, कहीं पे भी 1 होगा तो आउटपुट तो 0 होता है. लेकिन यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, भले ही दूसरा वाला इनपुट 0 हो 1 हो, अपने को पता है क्या, नहीं पता, है ना. लेकिन 1 आ गया मतलब आउटपुट 0 हो गई, है ना. देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी 0 हो 1 हो, 1 है मतलब आउटपुट 0. तो इधर 1 आ गया तो दोनों 0 होगा क्या, दैट्स कॉन्ट्रडिक्टरी, है ना. Because it is q and q bar, it is always to be complementing each other. It should be 0 1 combination only. Hence, it is known as forbidden state. समझ में आया, RS flip flop using NAND and NOR gates, clear है. Now the same thing, अभी इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं है, ये अपने आप चल रहा है ना, अपने आप चल रहा है. मैंने क्या बोला था, क्लॉक क्यों यूज करते हैं, कल मैंने बोला था, टू सिंक्रोनाइज. कॉलेज में बेल क्यों बजता है, घंटी क्यों बजती है. आप कभी भी आओ, कभी भी लेक्चर करो, कभी भी जाओ, ऐसे चलेगा क्या, नहीं. ये ऐसे होता है क्या कि कुछ बच्चों के लिए एक घंटी, कुछ बच्चों के लिए, स्कूल की बात नहीं कर रही मैं एक ही क्लास की बात कर रही हूँ. क्लास में डू यू हैव बाइफिकेशन, सम किड्स will follow this bell, some kids will follow that bell, until and unless you have different this thing. I'm talking about one class. एक क्लास के लिए एक ही बेल रहता है ना. अब फिजिक्स का क्लास खत्म हुआ, केमिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास खत्म हुआ, राइट. दैट मीन्स यू आर सिंक्रोनाइज्ड. तो बेल क्या हुआ, वो बेल हुआ क्लॉक, right. For digital electronics also there should be clock. So all these flip flops are now going to be clocked. Same चीज, इसको हम क्या लगाएंगे, we are just going to put a small little clock. Okay, इसको हम लगाएंगे clock. अभी इधर जगह नहीं है. अच्छा, before that let us see, wherever the q is 1, wherever the q is 1, this state is known as the set state. क्या बोलते हैं उसको, set state. And wherever it is 0, which state it is known as, it is known as a reset state, even for NAND.
NAND के गेट्स यूज करके किए थे तभी भी 1 0 आया था. Wherever Q is 1, always remember this. ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए. 1 मतलब सेट. समझा क्या? Wherever Q is 1, it will be set state. Wherever it is 0, it will be reset state. Clear? Clear? Yes or no? समझ में आया? Okay. Now the Yes, same thing I'm going to change to back to NAND. Just give me a second. Okay. Now which I drew before. No, मैंने जो पहले draw किया था. No, AND gate, no, NAND gate and NOR gate. वो बार बार वो draw करने की जरूरत नहीं. This is the symbol of a flip flop. Box SR. तो मैं समझ जाऊंगी कि इसके अंदर क्या है using NAND और NOR whatever. अगर NAND gate है तो यहाँ पे ऐसे NAND gate होगा. इसका आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी एक NAND गेट होगा, ऐसा इसका इनपुट इसके आउटपुट पे कनेक्ट है, क्रिस क्रॉस कपल्ड. ठीक है, तो बार बार इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ इट, यू कैन ड्रॉ दिस वे आल्सो. दिस इज द सिंबल ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप. व्हाट इज RS फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप. समझ में आया क्या? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप. व्हाई इज इट सेट रीसेट? बिकॉज यू आर गेटिंग टू स्टेट्स, 1 and 0. ठीक है, आउटपुट पे 1 and 0 ही आ रहा है ना. 1 and 0 you're getting. So 1 is known as set state, 0 is known as reset state. Okay. Now clock signal. देखो clock signal मैंने apply कर दिया है flip flop को. Now clock signal, how is it looking? How does the clock signal look? Which type of waveform is it? Sine wave है? Sine wave है? नहीं. It is a square wave, right? It will look something like this. Can you tell me the logic levels here? What are the two logic levels? Now वो तो कोई भी सिग्नल हो, हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने से दो ही लेवल होता है. इट इज 1 and 0. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद 0. जब 0 होता है क्लॉक में, ये कौन से गेट्स हैं? एंड गेट्स, राइट? एंड गेट मतलब लॉजिक मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉजिक एडिशन होता है. एंड गेट्स लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, राइट? एंड गेट मतलब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होने वाला है. जब क्लॉक 0 होता है, देखो इनपुट में है ये, मतलब 0 इधर गया, मतलब 0 इधर गया. सही बोला मैंने? आउटपुट पे क्या आएगा? लॉजिक मल्टीप्लिकेशन में. इधर ये इनपुट कोई भी रहने दो, ये इनपुट कुछ भी रहने दो, 0 या 1 कुछ भी रहने दो. ये जब क्लॉक 0 होता है, ये 0 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आउटपुट पे क्या आएगा? 0. करेक्ट, बिकॉज इट इज मल्टीप्लिकेशन ना भाई. एंड है ना, कुछ भी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0. समझ में आया? आंसर क्या आएगा? 0. सो whenever the clock input, whenever the clock is low, the AND outputs are low. Okay, outputs are low. और ये कहाँ connected है? And it is directly connected to SR. तो कौन सा condition follow होगा यहाँ पे? 0 0 का condition follow होगा. Okay, please don't look at this because this is the NOR wala. I am using NAND gates wala. ठीक है? So whenever the clock input is low, and gate outputs will be low, and changes in R or S will be affected. Okay, but they will, the 0 0 है इसलिए कुछ भी affect नहीं होगा अंदर. Fine, disabled होगा. जो भी last state था वो वैसे के वैसे ही रहेगा. Fine. Now when the clock input is high, अब जब क्लॉक इनपुट आए, बिकॉज देखो ये जो हमने पहले देखा 0 0 हो रहा है, 0 1 हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चलेगा ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, राइट? सो आई नीड अ बटन. इफ यू हैव अ ट्यूबलाइट इन योर हाउस, मुझे पता है वो ऑन और ऑफ होगा, बट मेरे हिसाब से ऑन और ऑफ होना चाहिए ना. व्हेन आई नीड लाइट आई विल स्विच ऑन, व्हेन आई डोंट नीड इट आई विल स्विच इट ऑफ. तो ये ऐसा ही एक स्विच है. समझ में आया? व्हेन क्लॉक इज लो, दैट इज व्हेन क्लॉक इज 0, it is disabled mode, नहीं चलेगा. ठीक है? But when the clock is high, data will be transmitted to the output. तब latch, इसको latch बोलते हैं. It's also known as a latch. Okay? It will be enabled. समझ में आया? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबलाइट्स है, फैन है, सब चल रहा है, पता है, बट वो ऑन और ऑफ कौन करेगा? You should have some synchronization ना. वही जो स्विच, वो जो कंट्रोलिंग फैक्टर आप बटन लगा के करते हो, वो मैं क्लॉक लगा के कर रही हूँ. समझ में आया? क्लियर है ये बात? सो व्हेन द क्लॉक इज 0, when
when it is and you can control this, okay? When you want, if you want to अगर मुझे ये जो फ्लिप फ्लॉप है लैच है मुझे ऑफ रखना है ज्यादा देर के लिए, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दो, ठीक है? इफ आई वांट टू स्विच इट ऑन फॉर एनेबल करना है ज्यादा टाइम के लिए, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दो, लॉजिक 1 का टाइम पीरियड बढ़ा दो। समझ में आया? इज दिस क्लियर? This when, so that means now I'm going to talk about output, ठीक है? मैंने क्या बोला, जब क्लॉक 0 है this is disabled, ठीक है? That means the output remains in the state, उसको बोलते हैं QN। समझ में आया? QN मतलब that particular nth stage, it will remain in QN, okay? And the time just after ये लो होने के बाद जस्ट आफ्टर वो ऑन हो जाता है, इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे? QN+1। समझ में आया? क्लियर है? तो ये इसको हम हमेशा नेक्स्ट स्टेज या विल डिसेबल एनेबल ऐसे बोलने से ज्यादा यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। So when the clock is 0, you will it is disabled, it will remain in the same state, and just after 0 it will be 1, it will go into the next state, okay? Clear hai? So if S is equal to 0, R is equal to 0 and clock is high, that means if clock is high, QN will be equal to QN+1। ये अलग इनपुट है, ये क्लॉक अलग इनपुट है। मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लॉक 0 है तो कुछ भी नहीं होने वाला इसमें, लेकिन क्लॉक हाई है तो ये चारों लागू होने वाला है, ठीक है? ये चारों लागू होगा, कंडीशन 0 0 0 1 1 0 1। सिर्फ ये समझना है कि क्लॉक 0 होगा तो डिसेबल होगा, 1 होगा तो इट विल बी enabled। क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? एंड डिसेबल मतलब वही स्टेट पे रहेगा QN, और अगर क्लॉक पल्स हाई है देन इट विल बी QN+1। क्लियर? Yes, did you understand the concept of clock in the flip-flop? I hope it's clear. Now tomorrow we will be doing another type of flip-flop, that is D flip-flop. D and then JK. There are two types of flip-flop, and one cancellation I will tell you. Please tell me which book are you using now? अभी आपके सामने कौन सा बुक है? जल्दी बताओ, अभी एंड होगा क्लास। बुक नहीं है, TPS है। ओके, TPS है तो पेज नंबर 5.8 कैंसिल करो, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। इफ इट इज TPS देन पेज 5.8 preset and clear facilities in a flip flop, please cancel that, it's not there in your syllabus। page 5.8। and if you're using Fadke publication, page number 248, preset and clear facilities in a flip flop 5.4.6, वो वाला कैंसल्ड है। इफ फड़के पब्लिकेशन देन पेज नंबर 248, उसमें प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज है, वो कैंसिल कर दीजिए। इफ यू यूजिंग TPS और किन्नरी पब्लिकेशन देन पेज नंबर 5.8 में क्वेश्चन नंबर 8 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? The time of Zoom is over and tomorrow I'll see you with D flip flop, okay? अभी बंद होने वाला है, okay? Bye.